سے. اچھا دوسرا کوشچن جو اسٹوڈنٹس کو کنسرن رہتا ہے کہ آسٹریلیا میں جاب کا کیا سیناریو ہے, کیا وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ورکنگ آورس ملتے ہیں, اور وہ تھوڑا سا بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹ آسٹریلیا جو آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے سب کلاس 500 پہ الاؤ کرتا ہے وہ آپ کو 20 آورس پر ویک الاؤ کرتا ہے. بٹ فار اسٹوڈنٹ لائک می جس نے یعنی کہ اپنا خرچہ کو نکالنا ہو, اپنی گروسری کا, اپنا رینٹ کا خرچہ, تو اس کے لیے 20 hours is not enough. اچھا 20 hours is not enough, not for every student میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آن کیش کام کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ, کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ. What does the mean of on cash? آن کیش اور TFN کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کی جو جاب ہے وہ ایک آپ جو بندہ ہے جو آپ کو یعنی کہ جو جس نے آسٹریلیا میں جیسے آپ کو 20 hours الاؤ کیے ہیں تو آپ ٹیکس پہ وہ 20 hours کام کر رہے ہو. آن کیش پہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ کے ساتھ کام کرتے ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اچھا وہ جیسے ڈیلی ویجز پہ ہو گیا, اچھا اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا یہ چیز اس طرح کی آسٹریلیا میں الاؤ ہے, اور اس کا کیا لا کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اٹس انلیگل. یہ کہ ہر اسٹوڈنٹ وہاں پہ کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یعنی کہ نو ہاؤ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یعنی کہ افورڈ نہیں کر پاتا, تو وہ یعنی کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ یعنی کہ مور دین 20 hours ہر اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے اگر آپ یعنی کہ جاب ڈھونڈنا جا رہے ہیں آسٹریلیا جاتے کے ساتھ ہی, تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ تھوڑا مائنڈ میں رکھ کے جائیں کہ آپ نے یعنی کہ پیسے اپنے ساتھ کتنے لے کے جانے ہیں. کتنے لے کے جانے یہ ضرور بتا دیجیے, کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کہ اپنے پاکٹ میں جو ہے آپ کے پاس کتنا کیش ہونا چاہیے. اگر جو منیمم یعنی کہ جو میں نے اسٹیمیٹ لگایا تھا جب میں جا رہا تھا, تو یعنی کہ جو منیمم ایک خرچہ ہوتا ہے فار بیچلرز اگر آپ جا رہے ہو یا فار ماسٹرز اگر جا رہے ہو, تو وہ ویری کرتا ہے بٹوین 20 lakhs to 30 lakhs کے بٹوین 20 to 30 پاکستانی لے جو آپ کی یعنی کہ فرسٹ انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ جو آپ نے فرسٹ جاتے کے ساتھ ہی جو آپ کے پیسے لگنے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ آسٹریلیا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پاکٹ میں اگر آپ کا وہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے جس نے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں دینی, تو وہ کم از کم آپ کے پاس $3,000 to $5,000 آسٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ آپ کی پاکٹ میں ہونے چاہیے. یہ $5,000 پاکستانی کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ تقریباً 5 lakhs 5 lakhs, یعنی کہ آپ کے پاس کم از کم 3 سے 5 لاکھ روپے جو ہیں آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ جابس کے حوالے سے کوئی ایسی کنڈیشن, کوئی ایسی سچویشن کی جا سکتی کہ یہاں پاکستان سے بندہ پریپیئر ہو, کیا اسکل ورکر وہاں کامیاب ہے جاب کے لیے, یا ویسے ہی ڈیلی ویجز پہ کام مل جاتا ہے, کیا سین ہے وہاں؟ اسٹوڈنٹس کو سر پہلی بات ایزیلی وہاں پہ کام مل جاتا ہے. اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں, آپ کے پاس کوئی یعنی کہ اسکل ہے, کوئی نالج ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں پہ فائدہ ضرور دے گی کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ جا کے. بٹ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو نہ جا کے جو بالکل فریش ہی ہیں, کوئی کام نہیں کیا ہوا, بالکل پیمپر ہو کے رہ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پیرنٹس کے ساتھ, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے جو سب سے پہلا کام یہ کر سکتے ہیں وہ ہے اوبر ایٹس کا کام. اور اوبر ایٹس اس طرح ورک کرتی ہے کہ جو آپ کا پاکستانی لائسنس ہے اس پہ آپ آسٹریلیا میں 6 مہینے تک آپ پاکستانی لائسنس پہ یعنی کہ آپ کار ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور پاکستانی لائسنس جو ہے وہ سر آپ کو اوریجنل ہونا چاہیے. اور جی بالکل, وہ یہاں سے کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا کہ آپ فیک پاکستانی لائسنس بنوا کے لے کر چلے جائیں. یہ چیک ہوتا ہے وہاں؟ جی سر, یہ کہیں نہ کہیں جا کے اگر انہوں نے آپ کو روک لیا, پولیس نے آپ کو, کیونکہ جتنے ٹریفک کے رول اینڈ ریگولیشن ہے اس پہ یہ کنٹریز تو یہاں تک کہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں. بالکل ڈپورٹ کر دیتے ہیں, بالکل کر دیتے ہیں. اور یہ کہ جب آپ نیکسٹ اگر آپ آگے PR پہ جب آپ کا ایک اسٹیج آتی ہے تو اس پہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے چیک ہوتے ہیں. تو جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ 3-4 سال جو ہے وہ انلیگل ڈرائیو کرتا رہا ہے ایک لائسنس پہ, تو آبویسلی بات ہے وہ یعنی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو یعنی کہ یہ اسٹیج تک جا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس ڈپورٹ کر دیں. تو اگر آپ ابھی پلان کر رہے ہیں آسٹریلیا جانے کے لیے 1-2 سال, تو سب سے پہلا اسٹیپ جو آپ نے وہ کرنا ہے وہ پہلا جو ہے وہ آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ اوریجنل بنوانا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے آئلٹس کی تیاری جو ہے وہ اسٹارٹ سے پہلے کرنی ہے. اچھا ابھی آپ نے حسیب بات کی PR کی, تھوڑا سا PR کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ ہاؤ وی کین گیٹ دا PR اینڈ واٹ از PR ان ایکچوئل. تو PR کی جو سچویشن ہے وہ آسٹریلیا میں تھوڑی آج کل ٹف ہوتی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ اٹس ناٹ امپاسبل. اگر آپ ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں یا بیچلرس کے لیے جا رہے ہیں تو جو آپ نے اسٹڈی جب پاکستان سے کی ہوئی ہے ادھر جا کے اگر آپ اپنی ہی فیلڈ میں اس اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں آسٹریلیا آپ کو امیگریشن دے رہا ہے, تو اس فیلڈ کے پوائنٹس ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کے الگ الگ پوائنٹس ہوتے ہیں. تو اس فیلڈ پہ اگر آپ اس پوائنٹس کو ریچ کر لیتے ہیں دیٹ آر 90 to 95 جو آج کل چل رہے ہیں یعنی کہ نارمل فیلڈس کے, اگر آپ ان کو لے لیتے ہیں تو آسٹریلیا آپ کو یعنی کہ امیگریشن آفر کر دیتا ہے. امیگریشن وہاں پہ ہر اسٹوڈنٹس یقیناً آفر کرتا ہوگا. آسٹریلیا میں میرا اپنا کنسرن ہے تھوڑا سا بچوں کے اوپر, ریشو کیا ہے کہ اگر آپ PR اپلائی کرتے تو 10 out of کتنے بچوں کو جو ہے
पाकिस्तानी की बात करूंगा, कितने को इमिग्रेशन का हो जाता है? सर मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस ये किया है कि एक दफा जो बंदा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है वो इमिग्रेशन मैंने देखा है कि वो लेकर ही वापस यानी वो 4 साल में उसको मिले, 5 साल में मिले, 10 साल भी लोगों को लग जाते हैं, यानी कि वर्कआउट करते 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 ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं तो वहाँ पे चीजें खुलती जाती हैं, फिर आप वीजे से वीजा डबल करवा सकते हैं, स्टूडेंट वीजा दोबारा आपने लगवा लिया, स्टडी पीरियड आपने बढ़ा लिया, प्रोफेशनल ईयर कर लिया आपने, तो वो ये है कि कहीं ना कहीं आप जाके आपको एक स्टेज आती है कि आपको पीआर मिल ही जाती है। अब एक इन सारे थे जो जितने प्रोफेशनल क्वेश्चन थे इनसे हट के जरा, हाउ इज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल especially for Pakistanis? Very polite sir, very polite जी सर, यानी कि बहुत कोऑपरेटिव हैं वो लोग। इनफैक्ट मैंने अभी तक जब जितना टाइम में वहाँ रहा हूँ मैंने I have never faced any racism over there, they all are really cooperative आपके साथ, यानी कि आपको समझते हैं even if you are eating a halal food, तो मैंने कभी बिल्कुल हेल्प करते हैं, आपको समझते हैं कि what that means for you, सही वो कभी भी ये नहीं कहते कि रिस्पेक्ट करते हैं आपके फूड की, आपके कल्चर की, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जिनका कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि जिनका कोई अपना रिलीजन नहीं है, बिल्कुल वो वहाँ पे लोग आए हुए हैं डिफरेंट एरियाज कंट्री, काफी मुल्कों से आके लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को बनाया हुआ है, तो ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं जिनको मैंने नोट किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। एंड व्हाट इज दिस कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द रूल रेगुलेशंस एंड लॉज और देयर? They're really strict sir. Specifically if I'm talking about Victoria, तो बाकी स्टेट्स में अगर आप देखा जाए तो थोड़ी यानी कि नरमी करते हैं वो लोग, बट इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली सॉरी फॉर विक्टोरिया, तो विक्टोरिया के रूल्स हैं वो काफी टफ हैं। Why Victoria's? Because विक्टोरिया जो है वो सर थोड़ी ना पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उनके जाहिर सी बात है रूल एंड रेगुलेशन भी थोड़े टफ हैं एज कम्पेयर्ड टू अदर स्टेट्स, तो यानी कि वो थोड़ा ख्याल रखते हैं अगर आपने ट्रैफिक में भी कोई नेग्लिजेंसी हो गई आपकी, बिकॉज यानी कि जो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी यानी कि जो फेस वो करते हैं रूल्स के हवाले से, वो ये करते हैं कि उनको यानी कि जब वो ड्राइव करना शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उनको चलान बहुत आते हैं। चलान ये है कि पाकिस्तानी जो एक माइंड सेट है गाड़ी जैसे मर्जी चलाओ, इधर मोड़ लो, उधर हर जगह कैमरे लगे, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, चलान तो आपके पास ही उसी वक्त मोबाइल पे है। 40 अगर आपकी लिमिट स्पीड है तो आप 40 क्रॉस नहीं कर सकते सर। ठीक, अच्छा नाज़रीन, देखा कि आपको पता चला कि जी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो आपके पास एक मैक्सिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, फिर जब आप जाएं तो आपके पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, वहां पहुंचकर आपको कमरा कैसे मिलता है, कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप कमरा ढूंढ सकते हैं, कैसे कौन से तरीके कार हैं जिसके तरीके से आप जो है 20 आवर्स को अवेल कर सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा 20 आवर्स अगर आप जॉब नहीं करते तो आप ऑन कैश जॉब करते हैं, और बहुत से ज़्यादा आपने हसीब ने आपको उनका एटीट्यूड बिहेवियर भी बताया कि दे आर वेरी पोलाइट विद द पाकिस्तानी गाइज एंड विद द पाकिस्तानी पीपल्स, एंड रूल एंड रेगुलेशंस की भी उन्होंने बात की आपको, और पाकिस्तानी लाइसेंस के बारे में बताया कि पाकिस्तानी लाइसेंस इज वैलिड और देयर फॉर 6 मंथ्स, यू कैन इवन वर्क ऑन दैट। आप वहाँ पे उबर चला सकते हैं, तो ये आपकी जो है जाते साथ ही तो मेरी भी दोस्तों से और अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी लाइसेंस में कोशिश कीजिए कि आपका लाइसेंस थोड़ा सा पुराना हो, ऐसा ना हो कि जनाब आप कल जा रहे हैं तो आज आपको लाइसेंस मिला हो, ताकि पता चले कि आपने जो है ना ड्राइव की हुई। तो ट्राई टू गेट the license because in Pakistan we have a culture कि पाकिस्तान में गाड़ी तो हमें चलानी आती है, पिछले 10 साल से चला रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं लेते क्योंकि यहाँ कोई पूछता नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में जाके लोग पूछते हैं और पूछा जाता है। अच्छा सिर्फ आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, डेफिनेटली जब हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो आप बहुत से ख्वाब जो हैं अपनी आंखों में से जाके जाते हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत सी दुआएं आपके साथ होती हैं और बहुत कुछ आपके लिए सोचा गया होता है कि आप ये बनेंगे, वो करेंगे, ये होगा, लेकिन वहाँ जाके देखा गया है कि कई स्टूडेंट जो हैं वो या तो ऑस्ट्रेलिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं या पैसा कमाने की उनको ऐसी लस्ट हो जाती है कि वो उनकी डिग्री की कंप्लीशन नहीं होती। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कोई सिनारियो है और ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है सर, और सबसे पहला फैक्टर जो वेरी करता है वो यही कि आपका फाइनेंशियल जो आपका वो बैकग्राउंड है वो बहुत वेरी करता है। अगर वो स्ट्रांग होगा तो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। और फिर ये कि आपने बिल्कुल सही बात की कि जो बैचलर्स वाला बच्चा है और जो मास्टर्स वाला बच्चा है, वो बैचलर्स वाला बच्चा जो वो थोड़ी रंगीनियों में डेफिनेटली गुम हो जाता है, और फिर ये कि थोड़ा पढ़ाई से उसका बैकग्राउंड हट जाता है, वो प्रेफर करता है कि यार नहीं छोड़ के, ऑब्वियसली, बट आप अगर स्टडी वीजे पे हैं तो आपको गवर्नमेंट को ये शो तो करना होता है कि मैं स्टडी कर कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, तो वो ये करते हैं कि वो किसी छोटे प्रोग्राम में, छोटे चीजों में अपनी उस असल मकसद से हट के बस ये कि अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करने में वो लोग लग जाते हैं।
कुछ होते हैं जो यानी कि बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं पैसों के पीछे, तो पैसों की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये कि ऑब्वियसली जो आपका जो मेन गोल होता है स्टडी का, उससे वो लोग हट जाते हैं। तो एट द एंड फिर जब सारों का ये एक ट्राई होती है कि हम वी शुड गो फॉर अ पीआर, वी शुड गेट अ ट्राई, वी शुड गेट अ ट्राई। तो व्हेन यू गोइंग टुवर्ड्स अ पीआर, यहाँ पे पाकिस्तान में हम बैठे हैं, यही बातें करते हैं कि जी यार उससे जाके गोरी नाल शादी कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा क्या सिनेरियो है, क्या ऐसा होता है और इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ये एक लीगल तरीका है? सर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है कि यानी कि इस तरह का कोई स्टेप उठाता है वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे पेपर मैरिज की तरफ, बिल्कुल ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे जाते हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं सर, आप काफी तरीकों से पीआर ले सकते हो। ये सिर्फ पाकिस्तानी जब यहाँ पे होते हैं उनके ये बातें होती हैं, लेकिन ये होता है पाकिस्तानी लोग इस चीज के लिए ट्राई करते हैं, बट इसमें रिस्क बहुत होता है। ऑब्वियसली जब आप किस किस्म का रिस्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप एक लड़की के साथ, ऑब्वियसली वो आपको टीच करवा सकती है, आप उनके बाद में ब्लैकमेल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके बहुत पैसे लगते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, वहाँ पर डबल ट्रिपल पैसे लगते हैं अगर आप एक यानी कि एक स्किल्ड वर्क के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और एज कम्पेयर टू, यानी आप ये कहेंगे कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि आपको ऑस्ट्रेलिया जो है पीआर जो है वो एक दूसरे वे से और एक लीगल वे से भी दे, बिल्कुल लीगल वे से अगर आपको एक चीज मिल सकती है तो आप क्यों उस चीज की तरफ जाना। एट द एंड आप स्टूडेंट्स को क्या नसीहत करेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनका ये ख्वाब है आपकी तरह? बिल्कुल, मेरे काफी फ्रेंड भी सर मुझसे पूछते हैं कि क्या तरीका करना चाहिए। वो सबसे पहला तो ये है कि सर आप अपना बैचलर्स यहाँ से जरूर करें, बैचलर यहाँ से जरूर करें। बिल्कुल, आइल्स की अगर आपने तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपका यूनिवर्सिटी का दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर भी चल रहा है तो आप आइल्स की अभी से तैयारी शुरू करें। मैक्सिमम गो फॉर 7 और 8 बैंड्स जो आपको एक बार में बहुत फायदा दे सकते हैं। उसके बाद ये कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपने जरूर यानी जो है आपके ओरिजिनल होने चाहिए हर चीज। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है अभी से जाने की तो ये सारी जो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी करती हैं। तो एडवाइस यही है सर कि कोई यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, या लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा, जर्मनी और भी बहुत ऑप्शन है। बट मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि यू शुड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और एक एजुकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हैं कि जो यानी कि जिनको अगर आप वापस स्टडी करके भी पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब्स बहुत अच्छी मिलती है। बट यू शुड गो फॉर द मास्टर्स, यू गो फॉर द मास्टर्स। जी व्यूअर्स, जी पर्पल, जी स्टूडेंट्स, तो यू शुड गो फॉर द मास्टर। यूनिवर्सिटी वहाँ की ऐसी हैं कि जिनकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी है, वो लोग आपकी बहुत कदर करते हैं, वहाँ पे रहन सहन बहुत अच्छा है। ये सारी बातें हमें हसीब जावेद ने बताई। हसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम भी अगर हमें अपने स्टूडेंट्स की तरफ से कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, उनका कोई क्वेश्चन होता है, वैसे भी हम आपको फर्दर कॉल कर लेंगे। और नाज़रीन आपसे भी हैं कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से थ्रू हसीब कोई कुछ पूछना हो तो आप गुफ्तार चैनल में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हमदन गोश हैं और आप हमें अब इजाज़त दीजिए, हम दोनों को, न सिर्फ मुझे बल्कि हसीब जावेद को भी। तो फिर किसी और प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ नए मौजू पर बात करते हुए आपको नजर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।